सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI powered personal music teacher from Saregama. After defining yoga initially as samatvam, equanimity, evenness, Krishna continues in verse 49, Durena hyavaram karma, buddhi yoga dhananjaya, buddhau sharanamanvicha, kripana phalahetavaha. Work done with desire for fruits is verily far inferior to that performed with the mind undisturbed by thoughts of results. O Arjuna, O Dhananjaya, seek refuge in this evenness of mind. Wretched are they who act for results, for personal results. This verse is quite famous. Some years ago, the late Hammarskjöld, Secretary General of the United Nations, in a lecture, quoted this verse and said, if the statesmen of the world are guided by the thought contained in this verse, the world will be a better place to live in, more peaceful and more progressive. The truth is that when the mind is elevated beyond the pulse of the ego and the organic system, it gets a universality of comprehension. That's what the world needs, to take in all people. All violence, all delinquency, all crime come from concentration on this tiny ego, which one day has to be rejected. So man has the capacity to go deeper, to become more universal in his outlook. All this truth is lying hidden within him. Here is a technique by which that truth is expressed. That's why he said, Buddhau sharanam envicha. Take refuge in buddhi. Evolve buddhi out of your psychic energies within yourself. That same energy, a little processing, can produce buddhi, that most luminous instrument that man can ever have. Buddhi can be translated as enlightened reason. That's a beautiful idea. Reason which comprehends the whole of reality. That is buddhi. That's why in the Vedanta it is said, God or the Atman cannot be realized by the senses or the sense-bound mind. It can be realized only by buddhi. Buddhi grahyam, atindriyam are the words used by the Gita itself in a later chapter, can be grasped by enlightened and pure reason, because it has shed all its limitations imposed by the organic system and the ego. Therefore he said, take refuge in buddhi, evolve buddhi out of the ingredients of energy, psychic energy that are within you. In fact, the whole of character development is the evolution of this buddhi. Once buddhi comes, everything becomes clear. When buddhi goes, everything goes. In the last few verses of this chapter, Krishna will tell us, buddhinashat pranashyati. When you lose buddhi, you are destroyed. Man is destroyed. All delinquency and crime is when man loses buddhi. Intact, this buddhi should be within. Make it steady, make it permanent. That is the great teaching in this section. And so in the next sloka or verse 50, Krishna continues, buddhi yukto yahatiha ubhe sukritatushkrite tasmat yogaya yujyasva yoga karmasu kaushalam. Therefore he says, those who have buddhi, they are able to go beyond the dualities and contradictions of life. Therefore, yogaya yujyasva, rise to the level of yoga. And what is yoga? Yoga karmasu kaushalam. Yoga is dexterity, efficiency in action. The second definition comes here. Yoga is dexterity, efficiency in action. That double efficiency by which man becomes a productive unit of society outside. Man becomes efficient spiritually within himself. He grows spiritually, becomes expansive and universal in the context of that work by which he enriches society outside as well. This double efficiency is yoga, says Krishna in the Gita. Similarly, karmajam buddhi yuktahi phalam tektva manishinaha janmabandha vinarmuktaha padam gacchantyanamaham. The wise, possessed of this evenness of mind, abandoning the fruits of their actions, freed forever from the fetters of birth, go to that state which is beyond all evil. They become pure, they become perfect. This is possible in this very life. This book will say, Yadate mohakalilam buddhir vyatitarishyati tada gantasi nirvedam shrotavyasya srutasya cha. When the intellect crosses beyond the taint of delusion,
then shalt thou attain to that indifference regarding things heard and things yet to be heard. This confusion of ideas, confusion of things that you hear from various sources, that will never come because your mind has become steady. This is further expressed in the next verse. Shruti vipratipannate yadasthasyati nischala samadha vachala buddhi tada yogam avapsyasi. When the intellect, tossed about by the conflict of opinions, has become immovable and firmly established in the self, then shalt thou attain real yoga. That is real yoga, that perfect steadiness of mind, steadiness of buddhi. It has become established like a house built on rock. In the famous example given by Jesus, the wise man built his house on rock, and the rains descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not. It was built on rock. The foolish man built his house on sand, and the rains descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was its fall. Here is a choice before every human being. Build your life on the rock bottom of the infinite Atman, which is your true nature, not on the shifting sands of your own sensory appetites, organic cravings. That will certainly come to ruin, as civilizations come to ruin. Too much concern with organic pleasures and satisfactions. We have seen it in the Roman civilization. We see it even today's Western civilization. We have seen it in many civilizations that appeared in India in earlier times, so that it is a great teaching that men and women must go deeper, realize the truth that is hidden within them, establish a relationship of love and concern and service in the world outside, thus fulfill the destiny of man. It is this great philosophy Krishna is trying to expound to all of us here. Efficiency is the word used. Efficiency everybody wants, but various types of efficiency are there. We have seen ordinary motor cars making so much of noise, proceeding, shaking everything, but the speed is hardly 20-25 miles. Today's motor cars doesn't make any noise. It goes so calm and steady because it has high horsepower. Similarly, in human character, when there is spiritual energy resources available to us, we can do immense work calmly, silently, without fuss. Fussy work is inefficient work. Calm, silent work is true work. That calmness comes by deepening our spiritual awareness and drawing upon the resources of the Atman that is behind every one of us. That is why Krishna defines yoga as efficiency in work. Yoga, karmasu, kaushalam. What a beautiful idea. Carrying heavy responsibilities, yet everything in a spirit of calmness, gentleness, infinite concern for man, with a smile on one's lips. That is yoga. That is perfection in life and action. This is expounded by this very chapter in the remaining 18 or 19 verses as Sthita Prajna, the man of steady wisdom. It is a wonderful idea how to become steady in this unsteady world, just like the anvil in the blacksmith shop. So many things are shaped there. It remains absolutely steady and motionless. Can man develop this wonderful capacity? Yes, says the Gita. Everyone can develop this great capacity. That is why spirituality is a science and a technique. Yoga means that spirituality, not for the Hindu, not for the Muslim, not for the Christian, for any separate sect, but for every human being. Whether you are a Democrat or a communist or a Marxist, what does it matter? Everyone wants to realize possibilities hidden within oneself. That's why in the language of the late Sir Julian Huxley, when he said, we need a new science today. And what is that? The science of human possibilities. Exactly, Krishna expounds a science of human possibilities in this great book. How many possibilities are lying hidden in every human being? Try to bring them out, unfold them. The science and technique of unfolding the entire possibilities hidden within man is yoga in the Bhagavad Gita. Arjuna Uvacha. Sthitaprajnasya ka bhasha samadhistasya keshava स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्. श्री भगवानुवाच.
प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रा अनभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवस्वैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शशान्तिमधिगच्छति येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति इति साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।
हरी तुम मोरी राखो लाज हरी तुम मोरी राखो लाज हरी। सब प्रपंच की पोट बांधी के अपने शीस धरी। सब प्रपंच की पोट बांधी के अपने शीस धरी। सूर पथिक को बेगी उगारो, सूर पथिक को बेगी उगारो, अब मोरी नाव भरी तुम मोरी राखो लाज हरी तुम मोरी राखो लाज हरी। मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोह मिला न प्रीतम प्यारा। चित ले गई मेरा मुरली, अब सुध मोह नाही कछूरी। मेरी आँखिन का वो तारा, मोह मिलान प्रीतम प्यारा। मैं श्यामल रंग रंगीरी, और कृष्ण के प्रेम पगीरी। कहाँ मिले वो कान्हर कारा, मोह मिलान प्रीतम प्यारा। मैं कुंजन कुंजन भटकी, वृंदावन आए के अटकी। कब मिले ये नंद दुलारा, मोह मिलान प्रीतम प्यारा। मोह मिलान प्रीतम प्यारा। जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यतां दिक्षु तावकाः त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते। कृष्ण हे 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 कृष्ण हे।
शरदुदाशये साधुजात सत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिर्घ्नतो नेह किं वदः कृष्ण हे 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 विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् दृशमयात्मजात् विश्वतो भयात् दृशवते वयं रक्षितामुहुः कृष्ण हे 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 न खलु गोपिका नन्दनो भवा न खिलु देहिनाम् अन्तरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखो देवान् सात्वतां कुले कृष्ण हे 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 विरचिताभयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतिर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहं कृष्ण हे 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 व्रजजनार्तिहन् वीर्योषितां निजजनस्मय हंसनस्मित भज सखे भवत किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय कृष्ण हे 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 कृष्ण हे
समर्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषु नः कृन्दि हृच्छयं कृष्ण हे 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 मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना प्याययस्व नः कृष्ण हे 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 तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः कृष्ण हे 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 प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति हि कृष्ण हे 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 चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिन सुन्दरं नाथ ते पदं शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति कृष्ण हे 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 कृष्ण हे
दिन परीक्षये नीलकुन्तलैः वनरुहाननं बिभ्रदाव्रतं धनुरजस्वलं दर्शयन् मुहुः मनसि न स्मरं वीर यच्छसि कृष्ण हे 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 प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तने श्वर्पयाधिहन् कृष्ण हे 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 सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितं वितरराघवे स्मारणं नृणां वितरवीरनः ते धरामृतं कृष्ण हे 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 घटति यद्भवा नन्निकाननं त्रुटियुगायते मां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडोदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां कृष्ण हे 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 पतिसुतान्वय भातृबान्धवा नतिविलङ्घ्यते त्यच्युतागताः गतिविदस्तव गीतमोहिताः केतव योषितः कस्त्यजेन्निशि कृष्ण हे 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 कृष्ण हे
पृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरहस्यो वीक्षधाम ते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः कृष्ण हे 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 व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते व्रजनहन्त्यलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाक च नस्त्वस्पृहात्मना स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनं कृष्ण हे 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 यत्ते सुजातचरणां गुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषा यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति
न सुखम न पराम गतिम। लोगों में दैवी प्रवृत्ति या आसुरी प्रवृत्ति का असली निर्धारण होता है शास्त्रों से और किसी से नहीं। जो शास्त्रों का पालन करता है वो दैवी प्रवृत्ति का है, आसुरी प्रवृत्ति का नहीं। आसुरी पुरुष शास्त्र को नहीं मानता, वो शास्त्रों द्वारा कही गई सही विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है। अपने घमंड में वो मनमानी करता है, जिस वजह से ना तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है, ना परम गति और ना ही सुख। दोस्तों, मशीन या मोबाइल या कार चलाने तक के मैनुअल होते हैं। अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे तो आपको मालूम ही है कि क्या होगा। अगर सही विधि नहीं अपनाएंगे तो कोई भी काम कभी भी सिद्ध नहीं होगा। केसरिया मान हो रख जो राज रो गुलाम। केसरिया मान हो रख जो राज रो गुलाम। केसरिया मान हो रख जो राज रो गुलाम। चरण पनैया गही कर आगे हो, चरण पनैया कही कर आगे उभो रहूं आठो जाम। केसरिया माने हो रख जो राज रो गुलाम। केसरिया माने हो रख जो राज रो गुलाम। ऊंचा कर थारो दाम बिनारो, ऊंचा कर थारो दाम बिनारो मारा ठाकर शाम। ऊंचा कर थारो दाम बिनारो मारा ठाकर शाम। जो हरिवर काई चूक पड़े तो, जो हरिवर काई चूक पड़े तो कर जो ताड़न ले लगाम। केसरिया माने हो रख जो राज रो गुलाम। केसरिया माने हो रख जो राज रो गुलाम। ज्यों राज रिझो त्यों ही करूँगो, ज्यों राज रिझो त्यों ही करूँगो कर छल कपट हराम। ज्यों राज रिझो त्यों ही करूँगो कर छल कपट हराम। प्रेमानंद ने रावलो जानो, प्रेमानंद ने रावल जानो सब विधि पूर्ण काम। केसरिया माने हो रख जो राज रो गुलाम। केसरिया माने हो रख जो राज रो गुलाम। चरण पनैया गही कर आगे हो, चरण पनैया गही कर आगे उभो रहूं आठो जाम। केसरिया माने हो रख जो राज रो गुलाम। केसरिया माने हो रख जो राज रो गुलाम।
केसरिया मान हो रखजो राज रो गुलाम केसरिया मान हो रखजो राज रो गुलाम केसरिया मान हो रखजो राज रो गुलाम चरण पनैया गही कर आगे हो चरण पनैया गही कर आगे उभो रहूं आठो जाम केसरिया माने हो रखजो राज रो गुलाम केसरिया माने हो रखजो राज रो गुलाम ऊंचा कर थारो दाम बिनारो ऊंचा कर थारो दाम बिनारो मारा ठाकर शाम ऊंचा कर थारो दाम बिनारो मारा ठाकर शाम जो हरिवर काई चूक पड़े तो जो हरिवर काई चूक पड़े तो कर जो ताड़न ले लगाम केसरिया माने हो रखजो राज रो गुलाम केसरिया माने हो रखजो राज रो गुलाम ज्यों राज रिझो त्यों ही करूँगो ज्यों राज रिझो त्यों ही करूँगो कर छल कपट हराम ज्यों राज रिझो त्यों ही करूँगो कर छल कपट हराम प्रेमानंद ने रावलो जानो प्रेमानंद ने रावल जानो सब विधि पूर्ण काम केसरिया माने हो रखजो राज रो गुलाम केसरिया माने हो रखजो राज रो गुलाम चरण पनैया गही कर आगे हो चरण पनैया गही कर आगे उभो रहूं आठो जाम केसरिया माने हो रखजो राज रो गुलाम केसरिया माने हो रखजो राज रो गुलाम बांसुरी का तन बिल्कुल सीधा है, मन में बड़े बल हैं। कितनी बल खाती भावनाओं का कितनी तरह उच्चारण करती है। गीता के बोल तो बाद में सुने लोगों ने, पहले बांसुरी ने ही शाम के अधरों से लग के उसकी सांसें सुनी, उसके अंदर बल खाती भावनाओं को छुआ और सच है कि महसूस भी किया, वरना गीता के से पवित्र निर्मल स्वर कैसे जागते बांसुरी के तन में। बंसी की धुन पे देखो उतर के धरती पे आया आकाश, कन्हैया संग राधा रचाए रास, कन्हैया संग राधा रचाए रास। बंसी की धुन पे देखो उतर के धरती पे आया आकाश, कन्हैया संग राधा रचाए रास, कन्हैया संग राधा रचाए रास।
उतरे हैं तारे। यमुना में मुखड़ा देख रहे सारे, यमुना में मुखड़ा देख रहे सारे। ओ यमुना मिटाती है प्यास। ओ कन्हैया संग राधा रचाए रास, कन्हैया संग राधा रचाए रास। जल दर्पण में नाचे चंदनिया, रात बनी है रंगीली दुल्हनिया। ओ पूरी हुई है आस। ओ कन्हैया संग राधा रचाए रास, कन्हैया संग राधा रचाए रास। अंगना नाचे कंगना नाचे, सजनी संग सजना भी नाचे। डाल डाल के साथ डोल कर गोप गोपिया गैया नाचे। ओ नाच रहा मधुमास। ओ कन्हैया संग राधा रचाए रास, कन्हैया संग राधा रचाए रास। बंसी की धुन पे देखो उतर के, धरती पे आया आकाश। कन्हैया संग राधा रचाए रास, कन्हैया संग राधा रचाए रास। अजब तमाशा तेरा सांवला, अजब तमाशा तेरा, अजब तमाशा तेरा सांवला, अजब तमाशा तेरा। तू दुनिया में दुनिया तुझ में उलट पलट का फेरा। अजब तमाशा तेरा सांवला, अजब तमाशा तेरा। तुम ही भूतय भूत जगत के, तुम ही भूतय भूत जगत के, तुम ही ने जग घेरा। तुम ही भूतय भूत जगत के, तुम ही ने जग घेरा। तुम ही कीना तुम ही छीना, सुख दुख सब ही तेरा। अजब तमाशा तेरा सांवला, अजब तमाशा तेरा, अजब तमाशा तेरा प्रभु, अजब तमाशा तेरा। तुम ही चेतन वेदन दाता, तुम बिन अखिल अंधेरा। तुम ही चेतन वेदन दाता, चेतन दाता वेदन दाता। तुम चेतन दाता वेदन दाता, तुम ही चेतन वेदन दाता। तुम बिन अखिल अंधेरा। तुम ही देव भक्तन प्रयोगी, तुम ही देव भक्तन प्रयोगी। तुम ही गुरु तुम तेरा। अजब तमाशा तेरा सांवला, अजब तमाशा तेरा, अजब तमाशा तेरा सांवला, अजब तमाशा तेरा। करता हरता तुम ही कीना, करता हरता तुम ही कीना। तुमसे काम दूजेरा, करता हरता तुम ही कीना। तुमसे काम दूजेरा। तू कहे दीवाना सब है झूठा, कहे दीवाना सब है झूठा, कहे दीवाना
अजब तमाशा तेरा सावला, अजब तमाशा तेरा, अजब तमाशा तेरा सावला, अजब तमाशा तेरा। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उड़ता, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उड़ता, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अमूला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अमूला, नाम तेरो चंदनो, घस जब नाम ले तुझ ही को तारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माही पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई, भय उजियारो भवन सजलारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, नाम तेरो आरती। गोविंद का गुण गास्या, गोविंद का गुण गास्या, गोविंद का गुण गास्या। गोविंद का गुण गास्या, राणा जी मैं तो गोविंद का गुण गास्या। चरणामृत को नियम हमारो, चरणामृत को नियम हमारो, प्रभु नियम हमारो। नित उठ दर्शन पास्या, नित उठ दर्शन पास्या, हो दर्शन पास्या, हो दर्शन पास्या। राणा जी मैं तो गोविंद का गुण गास्या, राणा जी मैं तो गोविंद का गुण गास्या। हरि मंदिर में निरत करास्या, हरि मंदिर में निरत करास्या। घूघरिया धमकास्या, राणा जी मैं घूघरिया धमकास्या,
राम नाम का झांझ चला श्याम, राम नाम का झांझ चला श्याम, राम नाम का झांझ चला श्याम, भव सागर तर जा श्याम, भव सागर तर जा श्याम, तर जा श्याम, आहा जी तर जा श्याम। हो गोविंद का गुण गा श्याम, राणा जी मैं तो गोविंद का गुण गा श्याम। ये संसार बाढ़ का कांटा, ये संसार बाढ़ का कांटा, जा संगत नहीं जा श्याम, जा संगत नहीं जा श्याम। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, निरख परख गुण गा श्याम, निरख परख गुण गा श्याम, ओ गुण गा श्याम, आहा जी गुण गा श्याम। हो गोविंद का गुण गा श्याम, राणा जी मैं तो गोविंद का गुण गा श्याम। गोविंद 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 गा श्याम, गोविंद 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 गा श्याम। गोविंद 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 गा श्याम, गोविंद 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 गा श्याम। गोविंद गोविंद गा श्याम, गोविंद गोविंद गा श्याम, गोविंद गोविंद गा श्याम, गोविंद गोविंद गा श्याम। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं, परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। ज्ञान की तो फिर भी सीमा है, लेकिन अज्ञान की नहीं। ऐसे अनगिनत अज्ञानी हैं जो कृष्ण को नहीं मानते, उन्हें नहीं समझते। यहां कृष्ण से मतलब अर्जुन का सारथी या देवकी नंदन नहीं। यहां कृष्ण से मतलब वो परमात्मा जिसमें ये सारी दुनिया व्याप्त है। जो अज्ञानी उस परमात्मा को नहीं जानते, उनके बारे में कृष्ण कह रहे हैं, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं।